Welcome back to Linear Circuit Theory. In today's class, we will discuss what is driving point function, what is the transfer function, concept of pole and zero. Okay, so let's start. So for a two-pole network, there are the four terms I1s input voltage, V1s input voltage, I2s output current, and V2s output voltage. Okay, V1, I1, V2 and I2 all are the function of S because we are representing this into the frequency domain. So S is in complex frequency and its value is sigma plus J omega. Okay, so first we are talking about driving point function. Driving point function, suppose we are representing this ds and it is the ps over qs. Okay, numerator function of s in numerator as well as denominator, and driving point function is defined as ratio of same port quantity. Okay, and in s domain. So basically, what is driving point function? It is the ratio of same port quantity in frequency domain. Frequency domain means in S domain, not in time domain. So this is, so what is the possible case? This is V1S over I1S. Second is I1S over V1S. Third term is V2S over I2S, and fourth combination is I2S over V2S. Because V1 and I1 are related to the same port, same here V2 and I2 are related to the same port. So this V1 over I1, this is the ratio impedance, okay, because voltage to current quantity, and related to the input port. So this term is known as driving point input impedance. Okay, input impedance. Say this term can be written as driving point input admittance, because ये क्या है जी, current to voltage ratio. This term is driving point output impedance and this term is driving point output admittance. So the driving point function is the ratio of same port quantity. Now, second, we are defining the transfer function. Second term is transfer function. Transfer function that is represented by Ts. Okay. And what is transfer? As the name is transfer. Some quantity is transferred from input port to the output port. So transfer function is the ratio of output quantity to the input quantity. But it is again in frequency domain. So transfer function is defined as output upon input. But important is this is in frequency domain. Okay, in frequency domain, and this is again in frequency domain. Okay, but there are one more term, that is the condition all initial condition are zero. So what is the transfer function? Transfer function is output in frequency domain upon input in frequency domain with all initial condition are zero. ये मेरी कौन सी कंडीशन है जो इनिशियल कंडीशन जीरो मीन्स sometime the circuit has a different type of charging element, inductor, capacitor, so they all initially discharge, means capacitor should not have any voltage
or inductor should does not have any initial current. So this is all initial condition are 0. So transfer function is output upon input. So possible cases B2S upon B1S, पहला term output to input. Second term is B2S upon I1S. Third term is I2S upon B1S. And fourth term is I2S upon I1S. ये मेरे possible combination है. B2 output to input. So this is known as transfer voltage gain. ट्रांसफर वोल्टेज गेन, या इसे हम वोल्टेज गेन कहेंगे, आउटपुट टू इनपुट है. दिस टर्म इज B2 by I1, that is an impedance, but output to input, so this is transfer impedance. This term is known as transfer impedance. Same this term I2 by V1 admittance वाला, so this is transfer admittance, and this term is transfer current gain or current gain. Okay, so ये मेरे possible combination है. So driving point function are related to the same pole quantity, and the transfer function is related to the different pole quantity. Okay, so now okay, तो ये तो हो गया डेफिनेशन वाइज. ओके, अगर मैं ड्राइविंग, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोल एंड जीरो. नाउ वी आर डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पोल एंड जीरो. इन मेरा पोल क्या है, जीरो क्या है. अगर हम बात करें चाहे ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन ds और ट्रांसफर फंक्शन को सपोज हम ts कह रहे हैं. This is PS over QS. Again, TS is PS over QS. Okay. So driving point function or transfer function, it is always the polynomial of S in numerator as well as in denominator. जैसे सिंपल, अगर मैं एक रेजिस्टेंस R लेके चलूं, एक C लेके चलूं, this is suppose voltage V1S and I1S. Okay. This is, so question is saying find the ratio of V1 by I1S. V1S by I1S, find the voltage to current driving point impedance. यानी V1S कितना होगा, this is R plus 1 upon CS, क्योंकि ये impedance इसकी रिएक्टेंस हम कितना लिखे चलेंगे, this is 1 upon j omega C और this is equivalent to 1 upon SC. In frequency domain, this is equivalent to 1 upon SC into I1S. और बेसिकली V1S अपॉन I1S is RCS plus 1 upon CS. ओके, तो हमारा हम क्या कहेंगे जरा, सो ये पॉलिनोमियल ऑफ S इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. तो हम ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन की बात करें चाहे ट्रांसफर फंक्शन की, इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ S इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. जैसे मैं a1 s to the power n plus a2 s to the power n minus 2 an over b0 s to the power n plus b1 s to the power m minus 1 up to bn. ओके, कुछ भी हो, मतलब ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा जी, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ s एंड इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर. तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोल जीरो क्या है, तो रूट ऑफ न्यूमरेटर, अगर रूट ऑफ न्यूमरेटर जैसे मैं बात करूं PS इक्वल टू 0, आप करेंगे we will get the n root. ओके, दिस इज द n root, मुझे n root बनेंगे and this n root is known as जीरो ऑफ, ठीक है, ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन. आप अगर TPF ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन निकालना है और ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो दिस इज नोन एज जीरो ऑफ ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन. न्यूमरेटर को आप जीरो कर दो तो जो भी रूट आ रहा है तो उसे हम कहते चलें ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन कहते चलना है. एंड इफ QS इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर को जीरो करना है, अगेन m पॉलिनोमियल दिखा के चलना है, तो यहाँ आपको कितने मिलेंगे, m रूट, एंड दिस इज नोन एज पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन.
और ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन, जिसके भी आप निकालना है, चाहे ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन, जब आप न्यूमरेटर को 0 कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज पोल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। इंपॉर्टेंट ये है, दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय द सर्कल, सिंबल जो होगा सर्कल से, एंड दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय ए पोल, यानी क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द पोल, एंड इफ यू रिप्रेजेंटिंग दिस बाय ए सर्कल, दैट इज द 0 ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन और ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिंथेसिस में इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्टेबिलिटी चेक करना, लिनियरिटी, यानी वी विल डिस्कस द कंट्रोल सिस्टम, मतलब वी विल स्टडी ए सब्जेक्ट, okay, control system in which we find all the stability and other analysis with respect to this pole and G। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया 0, दिस इज माय पोल। नाउ ठीक है, now how can we represent the pole and 0? one more thing, सपोज जैसे हम इम्पीडेंस लेके चले, जेड ऐसे में लेके चल रहा हूँ, दिस इज V1S अपॉन I1S, फंक्शन क्या है S प्लस 1, एक एग्जांपल लेके चल रहे, दिस इज सपोज S प्लस 2 अपॉन मेरा S प्लस 3 S प्लस 4 है ये। तो अगर 0 की बात करें तो 0 जो होंगे दिस इज -1 -2, एंड पोल जो होंगे दिस इज -3 एंड -4, ये पोल है। तो 0 का सिग्निफिकेंस क्या, व्हाट इज 0? तो देखो 0 एक तो वो रूट है जिसमें मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0, ठीक है। और अगर यूनिट की बात करें तो ये है क्या, ध्यान देना, s इज द फ्रीक्वेंसी, मेरी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, तो 0 भी क्या होगी, वो फ्रीक्वेंसी है। तो डेफिनेशन वाइज हाउ कैन आई डिसाइड व्हाट इज 0? तो 0 को अगर मुझे डिफाइन करना है तो 0 आर दैट फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे मेरे ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन जो भी आप जिसके लिए भी निकालना है, उस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, दैट इज नोन एज 0 ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, द फ्रीक्वेंसी एट विच द फंक्शंस वैल्यू बिकम 0, दैट इज नोन एज 0 ऑफ दैट फंक्शन। जैसे ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन, यहाँ 0 इंपीडेंस है, 0 होने का मतलब है शॉर्ट और इन्फिनिटी होने का मतलब है ओपन। तो अगर मैं इस रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, इंपीडेंस के रेस्पेक्ट में, तो 0 आर दैट फ्रीक्वेंसीज और -1 एंड -2 आर रिप्रेजेंटिंग दैट फ्रीक्वेंसी एट विच द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस बिकम 0 और शॉर्ट सर्किट बिहेव एज द शॉर्ट सर्किट। सेम पोल में मेरे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, क्योंकि अगर मैं s इक्वल टू -3 -4 रखोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो पोल आर दैट फ्रीक्वेंसी एट विच फंक्शन वैल्यू बिकम इन्फिनिटी, और अगर इस इंपीडेंस के रेस्पेक्ट में बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, द इंपीडेंस वर्क एट द ओपन सर्किट। ओके, सो पोल एंड 0 both are represent the frequency and unit are hertz or radian per second। अगर आप ओमेगा लेके चल रहे हैं या एफ लेके चल रहे हैं तो हर्ट्ज, और अगर हम ओमेगा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो दैट इज द रेडियन पर सेकंड। ओके, दिस इज द पोल एंड 0। सेकंड, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ पोल एंड 0। ओके, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन of pole and 0 in S plane। देखो जी, अब मुझे क्या करना है, अपने पोल 0 को रिप्रेजेंट करना है। S क्या है जी, S इज कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, दिस इज सिग्मा प्लस j ओमेगा। एक तरह से कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं रियल, तो वन इज द रियल पार्ट एंड सेकंड इज द इमेजिनरी पार्ट। दिस वैल्यू मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सेम द इमेजिनरी पार्ट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम जो एस प्लेन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज एस प्लेन। तो एस प्लेन हैव वन इज पॉजिटिव रियल पार्ट, द नेगेटिव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट नेगेटिव रियल पार्ट, this representing the positive imaginary part, and this is minus j omega, negative imaginary part, positive real, negative real, positive imaginary and negative imaginary। तो दिस इज नोन एज द एस प्लेन, जिसमें हम ऑल पोल एंड 0 को रिप्रेजेंट करेंगे।
पोल सर्कल से क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि 0 इज रिप्रेजेंटिंग बाय ए सर्कल। ठीक है, नाउ सी दिस ZS हम ये लेके चले S+2 अपॉन S+3 S-4 and this is suppose S+2 S-2 whole square plus 4। तो उसका represent the pole and zero of this function ZS। तो अगर 0 बात करें, 0 कहाँ आएगी, 0 is 0 पे आएगा, -2 पे, एंड पोल आर -3 पे आएगा, S+3 = 0। सेकेंड इज S-4 0 को 4 आएगा, और जब हम इस टर्म को 0 करेंगे दिस इज 2 + -2 से आएंगे। सो दिस इज माय पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो 0 कहाँ का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 और -2, तो ये 0 ऑरिजिन हो गया, -2 नेगेटिव रियल एक्सिस, ये -2 0 है, इसलिए हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोल कहाँ कहाँ है, -3 पे, तो हमने यहाँ एक क्रॉस साइन -3 से रिप्रेजेंट किया। सेकेंड 4 प्लस का 4 है, क्रॉस साइन से +4 पॉजिटिव रियल, एंड 2 पोल कहाँ है, 2 + 2j 2 - 2j, तो 2 हम किधर मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव में, और 2j इधर मूव कर लो। सो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग 2 + 2j, और ऐसे ही इसका जो नेगेटिव होगा वो कितना रिप्रेजेंट करेंगे, -2 + 2 - 2। Okay, so that is my pole and 0 representation of this function. Okay, this class, okay, today we will stop here, and tomorrow class we will discuss about the property of driving point function and transfer function। property important क्यों है, वो इसलिए क्योंकि सिंथेसिस करनी है किसी भी फंक्शन की डिजाइनिंग, तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए फंक्शन लाई करता है या नहीं करता। आपसे कह दिया इसे इनपुट इंपीडेंस के लिए डिजाइन करो, जैसे मैं कह दूं ZS = आपसे कह रहा है S² + 1 और S³ + 3, आप इसके लिए अपने एलिमेंट लगाओ। तो पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि दिस सर्किट इज पॉसिबल टू एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, उसके बाद मैं डिजाइन करूंगा। तो in today class is very important class in which we will discuss what is the property of driving point function and transfer function, and we will start the network and synthesis after that. Okay, thank you.